وزیر اعظم کا دورہ امریکہ اب بھی جاری ہے۔ ہم سوال کچھ اس طرح سے اپنے تجزیہ کاروں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ لوگوں نے وزیر اعظم کے دورے کو پہلے دن سے فالو کیا ہے، ان کا امریکہ میں جلسہ، وہاں ان کے میڈیا کو دیے گئے انٹرویو، سب سے بڑھ کر آپ امریکی صدر کا رویہ بھی کل دیکھ چکے ہیں۔ آپ ماضی کے حکمرانوں کے دورے اور اس وقت امریکی حکمرانوں کا جو رویہ اور ڈو مور کا مطالبہ ہوتا تھا وہ بھی دیکھتے آئے ہیں، سن چکے ہیں۔ تو کیا اس دورے کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملاقات ماضی کے حکمرانوں کی نسبت بہتر رہی ہے؟ اسی پر ہم سوال کریں گے اپنے پینل سے، اور ہمارا سوال آپ کے لیے کچھ اس طرح سے ہے۔ عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات، ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر دی، امریکی صدر کی عمران خان کی تعریف، پاکستان آنے کی دعوت بھی قبول کر لی۔ کیا ماضی کے حکمرانوں کے مقابلے میں عمران خان اور امریکی صدر کی ملاقات بہتر رہی؟ ہاں یا نہیں؟ سب سے پہلے ہم چلیں گے حسن نثار صاحب کی طرف۔ حسن نثار صاحب، امریکی صدر نے کہا کہ عمران خان کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے، وہ ایسا دیکھ رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اوور آل ماضی کے حکمرانوں کی نسبت بہتر رہا یہ دورہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے؟ ماضی کی نسبت عجیب اس میں نسبت وغیرہ نہ ڈھونڈیں، چونکہ ماضی میں تو پریزیڈنٹ پرویز مشرف صاحب کی پریزنس تو زبردست ہوا کرتی تھی۔ اس کو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ کوئی پاکستانی سربراہ تھا جس نے دورہ کیا، اور وہ کیا بش کے ساتھ ان کا وہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد تو کوئی گھوڑے شاہ تھا، کوئی مداری، کوئی یہ میاں پرچی شریف، ان کی شکلوں پہ معذرت لکھی ہوتی تھی، شرمندگی لکھی ہوتی تھی، غلامی لکھی ہوتی تھی، معافی لکھی ہوتی تھی۔ نکال کے فوٹیج ابھی دیکھ لیں آپ، پاکستان پورے سے کہیں کہ اس پہ ووٹنگ کر رہے، جو میں اگر کہہ رہا ہوں اگر غلط ہے تو اس کا تو موازنہ اگر کرنا ہے تو پرویز مشرف صاحب کا البتہ ان کی اپنی شخصیت تھی، وہ ایک پریزنس تھی، ایک کانفیڈنس ہوتا تھا جو ایک دیانتدار آدمی کے پاس ہوتا ہے، صرف چوروں چکاروں کے پاس نہیں ہوتا۔ ان کی شکلوں پہ خوش آمدید لکھی ہوتی تھی۔ سو دیر از نو کمپیریزن۔ اور بہتر ہوا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ پرسوں جب بھی بات ہوئی ہماری لاسٹ، کہ بھائی یہ دونوں ملکوں کی ضرورتوں کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ کوٹ ان کوٹ میں نے یہی کہا تھا، دونوں کی ضرورتوں کی نوعیتیں مختلف ہیں، لیکن دونوں کی ضرورتیں ہیں اور بہت شدید ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کہاں کہاں تک اس کے ڈانڈے ملتے ہیں۔ تو بالکل یہ ایک فطری سا ہے۔ ایک چیز جو خوبصورت ایڈ ہوئی ہے، وہ جو جلسہ انہوں نے رکھا تھا، جس کے بارے میں نون لکھیے کیا کہتے ہیں، موچی دروازہ۔ اوہ جہاں پاکستانی اکٹھا ہوگا ماشاءاللہ موچی دروازہ ہی ہوگا، اور کیا ہونا ہے؟ ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ جدھر اتنا 20,000 پاکستانی اکٹھا ہوگا تو ماشاءاللہ موچی دروازہ بنے گا، نہیں تو کیا بنے گا؟ بہرحال ویل ڈن، بہت اچھا ہوا۔ عمران کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، ٹرمپ صاحب کی بہت اچھی تھی، مجھے تو اچھے لگنے لگ گئے بہت۔ ٹھیک رہا، زبردست، اٹ واز ویری گڈ، کانگریچولیشنز۔ صحیح، ہاں کا آپشن آپ لے رہے ہیں۔ نیائی صاحب، یہ تنقید کی جاتی تھی نواز شریف صاحب پہ بھی کہ وہ پرچی لے کے جاتے ہیں، خود عمران خان صاحب بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں۔ تو کل جو ان کا تھا انٹریکشن امریکی صدر کے ساتھ بھی، وہاں پہ میڈیا نمائندوں کو انہوں نے سوالوں کے جواب بھی دیے، خاص طور پہ وائٹ ہاؤس کا بھی ان کو وزٹ بھی کرایا گیا، جو ہر بار نہیں دیکھتے ہم کہ اس طرح کی ملاقاتوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ماضی کے حکمرانوں سے کیا بہتر رہی یہ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوب خان سے لے کے، بلکہ چلو لیاقت علی خان کا جو ہے دورہ امریکہ اس کو بھی نئے رہنے تھے، تو ایوب خان کو تو عمران خان خود تذکرہ کرتے تھے، مثالیں دیتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ ہمارا یوں استقبال ہوتا تھا۔ آج تک جتنے وزٹس ہوئے ہیں، سب سے جو کم تر رہا ہے نا، جس کو کہنا چاہیے کہ ایک ریسیپشن یا رویہ یا جس کو آؤٹ کم، وہ عمران خان کا رہا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں۔ ضیاء الحق کا میں موجود تھا 83 یا 82 میں واشنگٹن تھا جب وہ گیا تھا ریگن کو ملنے کے لیے۔ خدا گواہ ہے کہ وہاں کا میڈیا ایسا تھا کہ ایک بالکل ایک وہاں پہ ایک ان کے ہر میڈیا ہر چیز اس کی گرپ میں تھی۔ جو دورہ عمران خان کا پاکستان کی میں پورا ڈسکس ہو رہا ہے، امریکہ میں اس کو جگہ نہیں ملی۔ پھر اس کے بعد بے نظیر اور زرداری جب گئے تھے بابا بش کے وقت میں، وہ ریسپشن نکلوا لے۔ نواز شریف صاحب کا عمان کے اندر کوئی 50 ہیڈ آف اسٹیٹس آئے ہوئے تھے،
اور صدر کلنٹن ڈھونڈتے ہوئے نواز شریف کے کمرے میں بغیر کسی وجہ کے بریک فاسٹ کے بعد کیا. اس نے کیا ویئر از مائی فرینڈ, آئی وانٹ ٹو گیو ہم اے سرپرائز ٹو سی وداؤٹ اینی اپوائنٹمنٹ. یہ تھا وہ پھر کارگل کے اوپر چھٹی کے دن نواز شریف نے جو جنگ بند کرائی تھی, اس کے میں وہ جنگ جو ہے وہ نیوکلیر کلیجن پہ بڑھ رہی تھی. اور اس سے ہم نے دیکھا تھا جو الحق کے اوپر جو ہے جس کو کہنا چاہیے فلمیں بنی, کتابیں لکھی گئی. آپ کو اندازہ نہیں کہ جو الحق نے اس وقت امریکہ میں تھا, امریکن میڈیا کے اوپر امریکن پالیٹکس میں کتنا چھایا ہوا تھا, اور صحیح معنوں میں پرو پاکستانی لوگ اسٹیبلش میں بیٹھے تھے. پھر مشرف کا تو حسن صاحب نے ذکر کر دیا. باقی جو جس کو کہنا چاہیے اس دورے سے آفیہ صدیقی کے ایک کوشچن کے اوپر اس طریقے سے عمران خان اپولوجیٹک ہوئے, میں سمجھتا ہوں کہ شرمناک تھا کہ انہوں نے پہلے تو صحیح بات جا کے کوشچن پہ ہی واز ٹیکن بائی سرپرائز. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ 2020 الیکشن ایئر ہے. پچھلے الیکشن میں دونوں پارٹی ریپبلکن اور ڈیموکریٹ نے پاکستان ریڈ چیک پہ الیکشن جیتا. اس دفعہ ٹرمپ کو الیکشن جیتنے کے لیے افغانستان سے فیس سے بھی چاہیے, ایران کے خلاف ہارڈ اسٹینڈ چاہیے, ہوائے جو ٹیلی کام جائنٹ ہے اس کو انہوں نے بند کیا, چائنا کا سی پیک بند کرانا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزوں میں پاکستان کا رول تینوں بڑے امپورٹنٹ ہو گیا ہے. انہوں نے سال 1.5 سال پاکستان کو لبھانا ہے. عملاً ان کے ایڈمنسٹریشن میں ایک بندہ نہیں ہے, جان بولٹن, پومپیو, میں نے سارے ایڈوائزر کہ جو پرو پاکستان ہو, سارے ہائی اینٹی پاکستان, اینٹی اسلام, اینٹی ایران, اینٹی چائنا. تو میں کیسے مان لوں؟ کشمیر کے اوپر بڑا خوش آئند تھا, خدا کا میں خوش ہوں, سمپل. لیکن ہمارے لیے بہت اچھی تھی کہ پہلی دفعہ لانے رہو یہ شملہ کے بعد کوئی ایسا بات ہے کہ تیسرے ملک نے, امریکہ نے جو سارے بند کیا بولے ٹھیک ہے. دیگر پوائنٹس کے ساتھ ریسیپشن آپ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا. سب سے کم وگرنہ جو عزتیں ہمارے پہلے لوگوں نے کمائی ہیں. ٹھیک ہے صاحب, ہمارے سوال کے جواب میں آپ نئی کا آپشن لے رہے ہیں. حسن نثار صاحب آگے ہم جائیں گے, لیکن اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں, کیونکہ نیائی صاحب نے عمران خان صاحب سے مخالفت میں ضیاء الحق صاحب کی تعریف کر دی ہے. نہیں دیکھیں نیازی صاحب نہیں, نیازی صاحب کی جو بے شمار خصوصیات مجھے بہت عزیز ہیں, ان میں سے ایک ان کا تھوڑا بھول پن بھی ہے. باقی میری طرح چونکہ ان کی عمر بھی اب جواب دے گئی ہے, یادداشت کمزور ہے. اب ایکسپیکٹ کرنا 2019 ہے یا کیا ہے, یہ مجھے تو یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ اب کوئی پاکستان کا کوئی سربراہ کسی کو امریکن پریزیڈنٹ کے منہ کو تھپ تھپائے گا اور کوئی اس طرح کی حرکتیں نہیں. دنیا بدل گئی, نارمز بدل گئے, آپ کی حیثیت بدل گئی, آپ کی اوقات بدل گئی, وہ زمانے بدل گئے. اس لیے اتنا دور تک کمپیریزن جو ہے نا وہ ویسے ہی انفیئر ہے. ٹھیک ہے, پاکستان ہیڈ اے فیوچر. اب اس بیچارے کا ایک ماضی ہے, ابھی فیوچر آپ کو بنانا ہے. مجھے نہیں پتا ہے بنتا کہ نہیں بنتا آپ لوگوں سے. اس وقت پاکستان کا ایک مستقبل تھا, اب پاکستان کا صرف ایک ماضی ہے جو خاصا داغدار ہے. تو زمین آسمان کا فرق ہے. آپ زیادہ سے زیادہ سے کمپیئر اس کو کر ہی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کرتے ہو, جو میں نے بہت منصفانہ طریقے سے کر دیا کہ ان کی ایک پریزنس ہوتی تھی, ان کی ایک ان کا کر و فر تھا, اور وہ ان کا عزت احترام دکھائی دیتا تھا. باقی یہ جو گنجے مجے گئے ہیں, یہ گنجے میں کہہ رہا ہوں اندر سے گنجا آدمی, وہ تو میں بھی ہو سکتا ہوں نا, حالانکہ میرے ابھی خاصے گھنے بال ہیں, اندر سے کوئی کچھ لوگ ہاں بس ٹھیک 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 ٹھیک. نہیں ہو سکتا کمپیریزن آپ کے. جی نہیں حسن صاحب معذرت کے ساتھ, گریٹ حسن صاحب, دیکھیں امریکہ کے اپنی جو اقتدار ہیں اس کے اندر پچھلے 50-60 سال سے, میں بھی بھرت کیا ہوں, آپ نے بھی ان کو قریب سے دیکھا والا ہے, پچھلے 60-70 سال سے وہاں پہ بڑا ٹھہراؤ ہے. وہاں اگر 60 سال پہلے منہ سب سے باتیں تو آپ بھی, میں نے بتایا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ تھا. کلنٹن کا اٹھ کے اس ہوٹل میں نواز شریف کے کمرے میں آ کے عمان کے اندر جہاں پہ 40-50 حکمران ٹھہرے ہوئے تھے, یہ بڑی عجیب باتیں ہوا کرتی تھی. یا نواز شریف کا اتوار کے دن
पहुंचना वाशिंगटन में और कारगिल जंग को बंद कराना जिसमें अमेरिका का ओवर स्ट्राइक था। असल बात मैंने बताया थी कि इस वक्त पाकिस्तान जो का दिल लुभाएंगे क्योंकि 2020 का इलेक्शन आज मेरी बात लिख लें सामने वाला है। जी 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 कि न्याय साहब, पाकिस्तान ही उनको जितवा सकता है। ठीक ठीक न्याय साहब आगे बढ़ेंगे। हर दाना डालेंगे पाकिस्तान को। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका न्याय साहब। हम दीगर तज्जियाकारों को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहेंगे न्याय साहब। यानी फिलहाल तो दाना डाल दिया उन्होंने ना। एक बात सर, एक बात अभी हम आज की तारीख तक की बात कर रहे हैं। एक बात कह दूं, अगर शकील अफरीदी ने आसिया को लिए बगैर दिया तो ये 20 करोड़ अवाम के मुंह पे तमाचा होगा। शकील अफरीदी उनका बंदा नहीं है, लेकिन वो 3 दिन पहले उनका सीनियर ऑफिसर कहता है कि शकील अफरीदी हमारा हीरो है, आफिया सिद्दीकी हमारी बेटी है। न्याय साहब इसी पे आ रहे हैं, बाबर साहब की तरफ जा रहे हैं। बाबर साहब और उसको 86 साल के अपने पास रखा ठीक हुआ है, पॉइंट आ गया न्याय साहब का पॉइंट आ गया। अच्छा, तो बाबर साहब ये ऑफर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, ऑफ कोर्स उनसे सवाल किया गया था, इसके जवाब में उन्होंने की है शकील अफरीदी और आफिया सिद्दीकी के तबादले वाली, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल जो मुलाकात रही उसके बाद दोनों रहनुमाओं ने जो गुफ्तगू की, आपने ओवरऑल इस इंटरेक्शन को किस तरह देखा? देखिए मेरे ख्याल से तो बड़ा अच्छा दौरा है और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत थी अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को रीसेट करने की, और वो बड़ा इफ़ेक्टिवली इमरान खान ने किया और कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो अमरीकी प्रेसिडेंट हैं वो भी बड़े टेम्परामेंटल से आदमी हैं और कुछ भी कह सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं। सो एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी के साथ इंटरैक्ट करना, एक अच्छी अपनी केमिस्ट्री डेवलप करना और एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करना, यानी जो कश्मीर वाली बात हुई है मुमकिन है वो कहीं पे भी ना जाए आगे, क्योंकि अगर इंडिया नहीं एक्सेप्ट करेगा मीडिएशन अमेरिका की तो नहीं जाएगी कहीं पे बात। लेकिन एक नैरेटिव चेंज हुआ, एक नजर आया वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, आप व्हाइट हाउस में बैठे हुए हैं, ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं, वहां पे बात हो रही है, अमेरिका कह रहा है कि हम तैयार हैं मीडिएट करने के लिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जी हम कश्मीर का हल निकालना चाहते हैं। सो उससे इन चीजों से नैरेटिव चेंज होता है। अमरीकी भी उनकी बात सुन रहे हैं, नजर आ रहा है कि पाकिस्तान पीस की बात कर रहा है और अगर इंडिया नहीं करता उसकी बात तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है कि ये जो हालात यहाँ पे खराब है। सो मेरा ख्याल है कि सारे पॉजिटिव वाइब्स निकले हैं वहां से। सो ये जरूरी बात है। तीसरी बात ये कि हम पहले भी कई दफा इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि मुल्कों के रिलेशनशिप इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। पाकिस्तान का इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे करने में, और इस वक्त अमेरिका का भी एक टैक्टिकल इंटरेस्ट है हमारे अंदर स्ट्रेटेजिकली। न्याजी साहब ने भी बात की, ठीक है चाइना के साथ भी उनका डिफरेंस है, उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ भी है, लेकिन अफगानिस्तान से निकलना भी उनके लिए ज़रूरी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि मैं इराक से निकलूंगा और उन्होंने अपनी फौजें वहां से विड्रॉ की, इराक और सीरिया से, और उसके बाद ये भी कहा था कि मैं अफगानिस्तान से भी अपने आप को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। तो इलेक्शन से पहले ही उनका करना ज़रूरी है। पाकिस्तान इससे पहले यही बात कर रहा था कि किन टर्म्स के ऊपर तालिबान के साथ आपकी नेगोशिएशन होगी। अमेरिका पाकिस्तान को पुश कर रहा था कि आप तालिबान को इतना कमजोर करें कि वो हमारी टर्म्स पे आके बात करें। ये डिफरेंस था पिछले 5 साल से। अमेरिका ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। और अगर हम इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं ये पीस को कल्टिवेट करने में अफगानिस्तान में, उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंडिया की भी बात कर सकते हैं कि जनाब यहां भी बातचीत से हो रहा है, वहां भी बातचीत से हल कीजिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से इररिलेवेंट है कल का क्रिटिसिज्म कि जी उन्हें एयरपोर्ट पे कोई लेने आया नहीं आया, इसी तरह से इररिलेवेंट है ये बात करना कि बाकी लीडर्स के साथ आप कैसे कंपेयर करेंगे। बिल क्लिंटन पाकिस्तान आए थे 8-10 घंटों के लिए, परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी यहाँ पे, प्रेसिडेंसी गए, वहां जाके उन्होंने 5-10 मिनट की तकरीर की। वो हालात ऐसे थे, 9/11 हुआ था, कू हुई थी, उसके बाद 9/11 हो गया, अमेरिका की नीड्स चेंज हो गई और जो रिसेप्शन परवेज मुशर्रफ को मिलता था, हसन साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बड़ा जबरदस्त रिसेप्शन मिलता था। सो जो अभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है इस पे हमें कैपिटलाइज करना है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और वेलकम करना चाहिए जो ओपनिंग इमरान खान की वजह से इस वक्त क्रिएट हुई है और हालात की वजह से। मुस्बत इशारे मिले हैं इस मुलाकात से, लेकिन आप कह रहे हैं कि कंपैरिजन नहीं किया जा सकता माजी के हुक्मरानों की मुलाकातों के साथ। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। मेमल की तरफ जाएंगे। मेमल, जो कश्मीर से सालसी का मामला था उसके ऊपर जो
अमरीकी सदर ने बयान दिया, अमरीका इस वक्त इंडिया में बहुत वावेला हो रहा है, उनका भारतीय मीडिया जो है वो ट्रंप को लायर करार दे रहा है, उनकी अपोजिशन ने इसके ऊपर बहुत बात की है, तो और वजारत खारजा की तरफ से भी इसको फ़ौरन से डिनाई कर दिया गया। भारत और अमरीका के ताल्लुकात में कोई इससे फ़र्क पड़ सकता है आपके ख्याल में, और इस मामले को आप कैसे देख रही हैं ओवरऑल? देखिए अफसा, मैं भी इसमें हाँ या नहीं का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं लूँगी। ये जो बाबर ने बात की, कंपैरिजन नहीं हो सकता। हमारे डिक्टेटर्स अमेरिका को बड़े पसंद थे, ज़रूरत भी थी उस वक्त, लेकिन उसके अलावा अगर आपको माजी में थोड़ा सा झांकना पड़े तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तो US कांग्रेस को भी एड्रेस किया था ना, वो फिर उनसे आप मुआवजा करें, इस तरह करके मुआवजा नहीं बनता। लेकिन हाँ, बड़ा कामयाब दौरा था। और जो आपने भारत की बात की, मैं भारतीय मीडिया से ही रिलेटेड आपको बात करूँ कि वो भारतीय मीडिया 3-4 चीज़ों पर बड़ा सख्त नाराज़ है। पहली चीज़ तो वो जब सालसी वाली उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा ये हो ही नहीं सकता कि मोदी ने कोई इस तरह की बात की हो, और वो ये कहते हैं भारतीय मीडिया ने उस वक्त ये बात की, उनके अभी वजारत खारजा से नहीं आया था रिस्पांस। उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि जब ये पुलवामा और बालाकोट का सारा कुछ चल रहा था तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन्हें कहा कि आप ज़रा बीच में, क्योंकि मीडिएशंस की बातें हो रही थी और ये भी कहा जाता है कि अमेरिका ने मीडिएट किया था उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग ताकि ना हो, तो हो सकता है वो बात की और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कन्फ्यूज़ हो गए और उन्होंने उसको ये बात कर दी। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं, डिनाइल तो आपको पता है फ़ौरन ही आ गया, कुछ चंद ही घंटे में आ गया उनका वजारत खारजा का डिनाइल आ गया कि हम सालसी तीसरे मुल्क के साथ नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ उनको जो बुरी लगी है वो ये है कि बिल क्लिंटन के बाद पहले सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एक्चुअली कश्मीर के बारे में ये बात की है कि देयर आर बॉम्ब्स ऑल ओवर द प्लेस। उन्होंने वायलेंस इन इंडियन कश्मीर की बात की है। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो भारत ने एक नैरेटिव बनाया हुआ है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर या कश्मीर के अंदर टेररिज्म करता है, वो वाली चीज़ को एंडोर्स नहीं किया। तो इंडियन मीडिया इस चीज़ के ऊपर भी बड़ा सख्त नाराज़ है। आप उनके आज के अखबारात उठा के देख लें। फिर उन्होंने ये बात भी की है कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई ऐसी बात की भी थी तो ये प्रिविलेज्ड कन्वर्सेशन थी, ये एक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और एक प्रेस के सामने किस तरह से इन्होंने डाइवर्ज कर दी प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ये भी भारतीय मीडिया में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान के रोल के बारे में अफगानिस्तान के लिए कहा गया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैज़ अ पावर दैट अदर नेशंस डोंट हैव विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। इसके ऊपर इंडिया के मीडिया के अंदर ये कहा जा रहा है और अफगान मीडिया भी और भी चंद लोग जो पाकिस्तान के ऑब्वियसली डिट्रैक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कैसे अमेरिका ये बात कह रहा है कि पाकिस्तान के पास ताकत है अफगानिस्तान के ऊपर, बजाय इसके कि ये कहने कि हम कोई तालिबान को हमने कोई सेफ हेवन्स दिए हुए या ऐसी चीज़। अमेरिका ने बिल्कुल वो लाइन नहीं ली जो यूजुअली अमेरिका लेता है, जो यूजुअली पहले ट्रंप साहब ने भी, अगर आपको याद हो कि पिछले साल जब उन्होंने न्यू ईयर पर ट्वीट की थी तो उन्होंने कहा था पाकिस्तान हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो इस वक्त बात यह है कामयाब दौर है, लेकिन उसकी वजह यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान की एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। सदर ट्रंप को अफगानिस्तान से निकलना ही निकलना है और उनको पाकिस्तान की ज़रूरत है, तो वो इसलिए पाकिस्तान को वो करे। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में इमरान खान साहब और ट्रंप के दरमियान बहुत सारी मुशाबत भी है, ख़ासतौर पर मीडिया के ऊपर जिस किस्म की कल उन्होंने बातें की हैं, तो वो आपको उनकी आपस में एक केमिस्ट्री भी थी, आप देख सकते थे। तो दौरा काफ़ी कामयाब है, लेकिन किसी के साथ मुआवजा नहीं बनता। ख्यालात कुछ एक जैसे नज़र आए बिल्कुल। इरशाद भट्टी साहब, डू मोर का मुतालबा नहीं आया अमेरिका की तरफ से, तारीफ़ों का तबादला हुआ, बल्कि बहुत ज़्यादा हमने देखा दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की तारीफ़ें भी की, फिर पाकिस्तान आने की दावत भी दी गई डोनाल्ड ट्रंप साहब को। आपके ख्याल में कितना कामयाब रहा ये मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप की? पहली बात तो ये है कि मैं अगले सवाल के जवाब में मेरे भाई न्याजी साहब मुझे ये बता दें कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हैं कि ज़ियाउल हक साहब के साथ हैं या जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हैं, क्योंकि जब मुल्की सियासत होती है तो वो भुट्टो साहब को ले आते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में मेरी जान अगले सवाल में सुन भी ले जवाब। न्याय साहब एक लफ्ज में बता। अच्छा सुना दे जी, सुना दे। उन्होंने पूछा है कि ये पुराने हुक्मरानों से दौरा बेहतर है, तो मैंने वो साइटेशंस कर दिए हैं जो कि अयूब खान के वक्त में, जो कि ज़ियाउल हक के वक्त में, जो नवाज शरीफ साहब के वक्त में, जो जरदारी साहब, और उसके वक्त में जो उसने अपना जो किया था भुट्टो साहब का 86 में इस्तकबाल किया था। बता रहे थे सिर्फ वो कह रहे हैं साहब जी। भट्टी साहब कंटिन्यू और फिर मीडिया कवरेज बताई है, फिर मैंने ये भी बताया कि जीतने के लिए अफगानिस्तान से फेज 7 के लिए उस वक्त का आंखों देखा हाल बताए थे। भट्टी साहब आप मुकम्मल कर लें अपना, फिर अगले सवाल की तरफ भी जाना है हमें न्याय साहब। जी ठीक है भट्टी साहब, मैं बता दूंगा, अगर नहीं समझ आई तो फिर बता दूं। अल्हम्दुलिल्लाह
ये अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के वक्त भुट्टो साहब के साथ होते हैं, शाम के वक्त ये ज़ियाउल हक के साथ होते हैं, रात को मरियम नवाज के साथ होते हैं, अगली सुबह को बिलावल के साथ होते हैं और अगली शाम को इमरान खान के साथ होते हैं। और इन्होंने इमरान खान को बनाया है, इमरान खान को बनाया है। हुकूमत का साथ दे रही है, हमारा पैनल फिर भी डिवाइडेड है। भाई मेरी ये कमजोरी नहीं है भाई, किसने कहा आपको मेरी कमजोरी है? मैं दिन दहाड़े डे लाइट में डंके की चोट पे अपनी बातें करता हूँ। आज तक ना मैं छुपाई अपने तल्लुकात किसी से, ना मैं किसी से खुफिया रखे हुए। अच्छा अभी ये इनकी आवाज बंद करें तो मैं आगे बस ठीक है ना, जवाब आ गया न्याय साहब का। ठीक है न्याय साहब, ठीक है न्याय साहब, वाले तल्लुकात हैं जिनसे भी रखता हूँ। टॉपिक की तरफ आगे वापस न्याय साहब टाइम है हमारे पास, जहाँ ये बैठे हुए हैं वहाँ दीवार को सवाल के जवाब की तरफ आ जाए। वाले हो वो आपको अपने तल्लुकात में शर्म आती है मीडिया में? न्याय साहब प्लीज, मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं तो बताता हूँ कि मैं मिल के आ रहा हूँ फलां को। न्याय साहब बस ठीक है, न्याय साहब प्लीज आपका ये पॉइंट सामने आ गया। भट्टी साहब सवाल की तरफ आ जाएं, आप क्या समझते हैं कंपैरिजन हो सकता है माजी की हुक्मरानी से? हो गया न्याय साहब, पॉइंट आ गया ना आपका। दूसरी बात क्लिंटन साहब ढूंढते ढूंढते आए और उन्होंने कहा कि वेयर इज माई फ्रेंड, और आगे से नवाज शरीफ ने शर्माकर और घबराकर कहा वेयर इज माई पर्ची। उन्होंने कहा सर इस पे पर्ची नहीं बनी थी, ये आपको खुद ही बोलना पड़ेगा। और तीसरी बात ये है कि ये रियाज कॉन्फ्रेंस में गए थे, इनकी आवाज बंद करें, रियाज कॉन्फ्रेंस में ये साथ लेके गए थे नवाज शरीफ साहब को, वहां तकरीर ही किसी ने करने नहीं दी, यही ट्रंप साहब वहां थे। ट्रंप साहब का बड़ी मुश्किल से हाथ मिलाया, और नवाज शरीफ साहब वापस तशरीफ ले आए। मैं कोशिश करूंगी टाइम निकाल के आपको मौका दूं न्याय साहब। खुश होना था। और भट्टी साहब प्लीज आप भी टॉपिक के ऊपर आ जाएं। अच्छा मैं टॉपिक पे आता हूँ। ट्रंप यहाँ भी रियाज में भी यही ट्रंप थे और वाशिंगटन में भी यही ट्रंप थे। इमरान खान के साथ देख लें और नवाज शरीफ साहब के देख लें, सारी रस्ते न्याय साहब उनको तकरीरें लिखवाते गए कि ये फिक्रा भी डाल लो मुस्लिम उम्मा के लिए, ये भी डाल लो, ये भी डाल लो, आखिर तो मुस्लिम उम्मा बैठ गए। ना झूठ बोले, ना झूठ बोले। अगले सुने देखें एक फक्के कुट्टन माँ की तरह देखो, किस लैंग्वेज देखो इस दानिश्वर की लैंग्वेज देखो, हाल देखो। भट्टी साहब का टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, मज़र साहब को हम वेट कर रहे हैं, मज़र साहब की तरफ जाएंगे फिर। नहीं अच्छा अगली बात है, आप सवाल पे आ जाएं कि पहली बात ये है कि शकील अफरीदी साहब को आफिया सदीकी से जोड़ना बहुत अच्छी बात इमरान खान की। कश्मीरियों के लिए ऐसे बात करना कि बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी का ये कहना, अली गिलानी साहब का ये कहना, सारी उम्र जेलों में गुजरी है। इमरान खान पहला लीडर है जिसने निहत्ते कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई, बहुत अच्छी बात है। मिलिट्री इमदाद बहाल करने का ट्रंप साहब का कहना, तिजारत से 12 से 20% बढ़ाने का कहना, इस्लामाबाद झूठ नहीं बोलता, मिलकर चलेंगे, बहुत अच्छी बात। अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत इकट्ठी बैठी, बहुत अच्छी बात। वज़ीर आज़म जितने कम लोगों के साथ गए, जो सादगी और बचत थी, और सबसे अहम बात शलवार कमीज़ वास्कट कप्तान चप्पल, और वो भी वाइट हाउस में, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात थी। अच्छा दूसरी बात जो अंदरूनी हालात हैं गवर्नेंस के, जो हमारे मुआशी हालात चल रहे हैं, और जिस तरह का मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सोशल मीडिया पे हो रहा है, और उसके मुझे तो इस तरह लग रहा है किसी दिन कायदे आज़म की तकरीर चलेगी और वो पाकिस्तान के मसाइल बयान कर रहे होंगे और एक खातून उस पर कहेगी कि नवाज शरीफ की याद तो आती होगी, इतना मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा। अच्छा इसमें इस मुलाकात को ऐसे ही है जैसे मरीज को बर वक्त इंजेक्शन लग जाना, जैसे बर वक्त तिब्बी इमदाद मिलना, ये ऐसी मुलाकात थी। पहली तकरीर आप देख लें इमरान खान की, जो इलेक्शन से पहले बाद में करतारपुर राहदारी देख लें, पार्थ भागत टेंशन देख लें, उसमें इमरान खान का रद्द अमल, अभिनंदन रिहाई देख लें, और ये मुलाकात, ये पांचों फॉरेन पॉलिसी हमारी जो है, ये वो ड्रिप्स हैं जो इमरान खान की, जिन्होंने अब तक औसान बहाल रखे हुए हैं। तीसरी और अहम बात, ये मुलाकात पहले से क्यों अच्छी है? जैसे पहले कहा है कि मायूसी बहुत थी, प्रोपेगेंडा बहुत था, तवक्को नहीं थी ट्रंप का ये रवैया होगा, ये इस्तकबाल होगा, ये गर्मजोशी होगी, ये गुफ्तगू होगी, इस तरह का आउट ऑफ द वे जाना होगा,
यहाँ तो हमारे लिए वो कुठपुतली है, सिलेक्टेड है, नाकाम खान है, वहाँ ब्रिलियंट है, आसम है, ग्रेट लीडरशिप है। तो ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। और जो भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा, भारतीय क़यादत का जो वावेला, जो कोहराम मचा हुआ है, जो बेबसी देखी हुई है, मुझे लगा है कि ये बहुत अच्छी है। और आखिरी बात है कि बिलाशुबा ट्रंप की इलेक्शन मुहिम शुरू हो चुकी है। बिलाशुबा वो अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, पुरअमन निकलना चाहता है, और ऐसे निकलना चाहता है कि जैसे सुबकी ना हो, सुरखरुई हो। इसके लिए हमारी ज़रूरत है, लेकिन यही ज़रूरतें होती हैं जिनको अपनी ज़रूरत में आपने ढालना होता है। और हमें भी FATF पे उस पे बात करनी चाहिए, तिजारत पे, अपने इमेज पे। और ये बहुत ओपनिंग, अच्छी ओपनिंग है, अल्लाह करे इसको आगे कंटिन्यू हो। सिर्फ एक चीज मैंने अब्सा कहना है, ठीक है। और आखिरी एक चीज, आखिरी अब्सा बात, आखिरी अब्सा, एक छोटी सी चीज, बहुत टाइम दिया आखिरी बात अब्सा जी, नहीं आखिरी 2 सेकंड। कम खर्ची, न्याजी साहब के नाम ये है, कम खर्ची, नो पर्ची, ट्रंप इमरान तवक्को से बढ़कर चर्ची। चर्ची मीन चर्चा। मैंने तो ये कहना भट्टी साहब को करेक्ट कर दो, इन्होंने वो शलवार की बात की। भुट्टो की दीवार को मैमुल कुछ ऐड करना चाह रही है। मैंने तो कहना था भट्टी साहब डांस करेंगे। जी यार न्याजी साहब, अच्छा ठीक है, भट्टी साहब को सिर्फ मैं करेक्ट कर दूं कि ये जो शलवार कमीज और ये सारी उसकी बात कर रहे थे, मियां साहब ने भी पहनी थी। फिर जरदारी साहब जब बेनजीर भुट्टो साहब के साथ पहली बार गए थे, बेनजीर भुट्टो साहब ने तो गरारा भी पहना था, वो ग्रीन कलर का, और जरदारी साहब ने बहुत खूबसूरत शलवार कमीज वो पहनी हुई थी। तो मतलब ये कहना कि इमरान खान ने व्हाइट हाउस में शलवार कमीज और चमशावरी चप्पलें पहनी, ये वैसे तो भट्टी साहब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए पहली बार नहीं हुआ, लेकिन खान को सिर्फ स्टेट विजिट मिला है बस, बाकी की सारे कपड़ों की बात की मैं आपको करेक्ट कर रही हूं। ऐसे ना करें कि बड़े तीर मारे हुए थे। ये बात महमुल की बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ने से पहले लेकिन इस बात पे कोई शक नहीं है कि कल वजीर आजम साहब बहुत अच्छे लग रहे थे, जो उन्होंने कौमी लिबास से वितरण किया था। मजहर अब्बास साहब, ये जो बातें हुई हैं, मुस्बत बातें हुई हैं कल की मुलाकात में, तो आपके ख्याल में इन सब चीज़ों का फॉलो अप हो सकेगा? और ख़ास तौर पे ये शकील आफरीदी और आफिया सिद्दीकी के तबादले की जो बात है, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि डिप्लोमेसी में सिर्फ इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं, हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर अमेरिका जाए और अमेरिकी सदर उससे वार्मली ना मिले तो वो दौरा नाकाम हो जाता है। ऐसा भी नहीं होता। आप बाज़ सिचुएशंस में आपके अमेरिका से ताल्लुकात टेंस होते हैं, लेकिन उसमें आपकी पोजीशन हो सकता है कि आपकी पोजीशन ज़्यादा सही हो। यानी 70s में अगर हम ले लें तो पाकिस्तान का जो अमेरिका के हवाले से मौक़िफ़ था और अमेरिका का पाकिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ था, वो बड़ा मुख्तलिफ था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो पोजीशन थी वो बड़ी मुख्तलिफ पोजीशन थी। तो क्या अगर अमेरिका उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो से वार्मली नहीं मिला तो वो क्या गलत हुआ, या वो उस वक्त हमारी पोजीशन दुरुस्त थी, या जनरल ज़िया-उल हक और जनरल मुशर्रफ जो है वो टोटली अमेरिकन पॉलिसी को टो कर रहे थे, तो इसलिए अमेरिका उनसे बहुत वार्मली मिला, तो क्या वो बहुत अच्छा टूर था? ये नहीं होता। देखिए, उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, हमारे अपने इंटरेस्ट होते हैं। ये दौरा कामयाब था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दौरे की कामयाबी, किसी भी दौरे की कामयाबी का दारोमदार जॉइंट कम्युनिके पे होता है कि उसमें क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। जो अभी शायद हो सकता है कि आज जो मुलाकातें हों उसके बाद वो जॉइंट कम्युनिके जारी हो, वो देखना है कि उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें क्या दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसकी नौयत उससे डिटरमिन्ड होगी जब वो मुश्तरका एलामिया जारी होगा। बाकी इमरान खान ने स्ट्रांगली पाकिस्तान का केस प्रेजेंट किया, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि पहली मरतबा आज से 1 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान में रेटिंग और कल डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान में रेटिंग में ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आएगा। डोनाल्ड ट्रंप की आज जो पाकिस्तान में बात की जाती है वो बहुत पॉजिटिवली बात की जा रही है। आज से 1 साल पहले उसके बारे में क्या हम सब का मौक़िफ़ रहा है, लेकिन आज हमारा मौक़िफ़ उसके बारे में मुख्तलिफ है। तो ये जो उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया और कश्मीर की बात की और अफ़गानिस्तान की बात की, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही नहीं, इंडिया इसको तो डिनाई कर सकता है कि मोदी ने ये बात नहीं की, हालांकि हमें तो मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने बकौल डोनाल्ड ट्रंप के उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया और कहा कि डिस्प्यूट हो, चले उसको उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उससे आगे जाके बात की
उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में वायलेंस हो रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर एक बहुत ही खूबसूरत खत्ता है, उन्होंने ये भी कहा कि दिस इशू शुड बी रिजॉल्व, यानी ये बातें उससे हट के हैं जो मोदी के हवाले से उन्हें बात की। और इसी तरह अफगानिस्तान के हवाले से तो मेरा ख्याल है इमरान खान ने केस बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट किया, इसमें कोई शक नहीं है इसमें। और अभी देखना है कि बाकी मुलाकातों में क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, लेकिन वार्मली मिलना या वार्मली नहीं मिलना ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इशू क्या डिस्कस हुए हैं, किस तरह आपके लीडर ने अपना केस प्रेजेंट किया है और किस तरह दूसरे ने अपना केस प्रेजेंट किया है, और उसके नतीजे में चीज़ें अगर आगे बढ़ी तो ये दौरा कामयाब होगा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ी तो ये दौरा नाकाम कहलाएगा। तो इसमें हमें स्पेसिफिक में नहीं जाना चाहिए, हर अदवार के अपने अपने तकाजे होते हैं।